Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Well, in this class, we have to discuss the questions which were a part of your computer test. So, now let's start. Well, our first question was, in which year World Wide Web was introduced? Fine. Well, the question is very simple, but you can find two possible answers for this question. The first answer is in 1991 and the second answer is, which is correct as per me or as per the book, that is 1989. Well, there is a reason behind this. In 1999, this World Wide Web was launched and it starts working fine. Whereas in the year 1989, this term or this thing was first introduced. Fine. So here the question was, World Wide Web was introduced in which year? So that's why our correct answer will be 1989. Fine. But अगर यहाँ पे question होता है कि भाई in which year this World Wide Web was started using, then the correct answer would be 1991. Fine. Now let's move to our question number 2. Our question number 2 is, it is a true-false type question. Fine. So now the question is, TCP handles the address part of each packet so that the data is sent to the correct address. Well, here we are talking about this term TCP. Well, the full form of this term TCP is Transmission Control Protocol, and it is generally used to send our data over our network. Fine. Generally, the basic functionality of this TCP is to convert our single data into some small packets. Fine. It means it will simply convert your data into some small packets or some small entities, and then these entities are sent over the network. Fine. It means the basic functionality of this transmission control protocol is to convert our big data into small packets and then to simply send those packets over the network. Fine. And when these packets are generated, then in that case, after the generation of packets, this IP, fine, IP is a protocol which is used to attach or manage the address part of each packet. Fine. So that's why in this answer over this place of TCP, our correct answer would be IP. फाइन. तो यहाँ पर भाई इसका मतलब करेक्ट आंसर आईपी था, टीसीपी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो वर्किंग हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है एड्रेसेस वाली, ये एड्रेसिंग का काम होता है आईपी का. दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज फॉल्स. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. वेल, आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज, एनी पेज होस्टेड ऑन इंटरनेट इज टर्म्ड एज. फाइन. मतलब कोई भी पेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो पेज क्या होता है भाई, व्हाट वी कॉल इट पेज. सो एक काम करते हैं, पहले इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज होम पेज. अब ये होम पेज क्या होता है भाई, जनरली व्हेनेवर वी ओपन एनी वेबसाइट, द फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स इन दैट वेबसाइट इट इज टर्म्ड एज द वेबसाइट्स होम पेज. फॉर एग्जांपल, जैसे ही तुम लोग नेट पे सर्च मारते हो या vccnblog.com, तो जो फर्स्ट पेज आता है, यहाँ पे एक बैनर वाली इमेज है, कुछ मेन्यूज है, फिर कुछ टेक्स्ट है, तो फर्स्ट पेज है भाई, दैट फर्स्ट पेज इज आवर होम पेज. फाइन. तो इट मींस जो भी भाई नेट पे सारे पेजेस तो फर्स्ट पेज होते नहीं है. फाइन. क्योंकि हर वेबसाइट का पहला पेज ही फर्स्ट पेज होगा, लेकिन उसके बाकी सारे पेजेस को तुम लोग फर्स्ट पेज बोलेंगे नहीं. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. देन आवर ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज हियर वी हैव रिटन फर्स्ट पेज. तो भाई नेट पे अवेलेबल सारे पेजेस फर्स्ट पेज नहीं होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. नाउ आवर थर्ड ऑप्शन इज वेब पेज. इट मींस यही ऑप्शन बचा है, तो यही करेक्ट होगा. अब ये क्यों करेक्ट हो, जरा इसको हम लोग समझते हैं बेटा. फाइन. वेल, जनरली इन इंटरनेट ऑल द पेजेस दैट वी हैव, फाइन, जितने भी पेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, इन सारे पेजेस को हम लोग बनाते हैं HTML के थ्रू. एंड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब ये जो HTML है ये एक वेब बेस्ड लैंग्वेज है. इसका मतलब इसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं. इट मींस ये जो पेजेस हम लोगों के वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, नेट पे अवेलेबल होते हैं, इन सारे पेजेस को हम लोग कहते हैं वेब पेजेस. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. एक बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन था. फाइन. वेल, द क्वेश्चन वाज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर. इनमें से कौन सा ब्राउजर है, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं भाई, इनमें से कौन सा ब्राउजर एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, यानी कि कौन सा ऐसा ब्राउजर है जिसमें इमेजेस और मल्टीमीडिया कंटेंट वर्क नहीं करता. वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो भाई आज की तारीख में तो कोई ब्राउजर अवेलेबल नहीं है. बट हाँ, जब इनिशियली इंटरनेट को स्टार्ट करा गया था तब उस टाइम पे ऐसे सारे ब्राउजर्स थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता था. फाइन. उनमें इमेजेस या मल्टीमीडिया कंटेंट सपोर्ट नहीं करता था. फाइन. इट वाज जस्ट बिकॉज कि इनिशियली इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं था, उसको बहुत लाइट वेबसाइट्स चाहिए थी, और टेक्स्ट सबसे लाइट होता है मल्टीमीडिया कंटेंट के कंपैरिजन में. फाइन.
अब यहाँ पर जो हमारे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ABC जो हम लोग को दिए हुए हैं यहाँ पे, दीज आर GUI बेस्ड ब्राउजर्स, फाइन। मतलब इन ब्राउजर्स में आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, फाइन। एंड अलॉन्ग विद दैट दीज ब्राउजर्स ऑल्सो सपोर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं भाई, पहले वाले तीनों ये क्या हो गए, ये हो गए इनकरेक्ट, फाइन। It means we are only left with this option, that is option number D, and you have to learn this, fine. So this D or links is our text based web browser. Now let's move to a question number 5. The question number 5 is, which URL specifies the exact location of a file or directory on the internet? अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन है भैया कौन सी URL, जो नीचे हम लोग को ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ऐसे कौन सी URL टाइप है जो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है भाई। फाइन, वी हैव दिस टर्म एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स क्या हुआ, फिक्स्ड हो गई यहाँ पर कोई भी चीज जो चेंज नहीं होती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, वेल व्हेनेवर वी ओपन आवर वेबसाइट्स द होम पेज इज स्टैटिक फॉर एवरीवन। कभी किसी के लिए ऐसा होता है कि हम लोगों की स्कूल की वेबसाइट में होम पेज अलग होता हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट चलो बात करते हैं इंस्टाग्राम में फेसबुक की। जब भी हम लोग इंस्टाग्राम में फेसबुक को लॉग इन करते हैं तो हर एक यूजर के लिए फर्स्ट पेज इंस्टाग्राम और फेसबुक का अलग अलग आता है, बिकॉज उन पेजेस में हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कंटेंट हम लोगों को विजिबल होता है। फाइन, इट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल नेटवर्किंग ऐप, तो भाई वहां पे जो फर्स्ट पेज है, जो भी पेजेस हम लोग देख रहे हैं, वो पेजेस पर्सन टू पर्सन वैरी करते जाएंगे। फाइन, इट मीन्स वो पेजेस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, उनकी URL एग्जैक्ट कभी भी नहीं हो सकती है। फाइन, ऑल सच पेजेस आर टर्म्ड एज रिलेटिव, डायनेमिक और कस्टम। फाइन, मतलब वो सारे पेजेस जो क्या हो रहे हैं, जिनका कंटेंट हर अलग यूजर के लिए अलग होगा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फेसबुक पे जाके प्रोफाइल वाला पेज खोला तो प्रोफाइल वाला पेज मुझे मेरी प्रोफाइल दिखाएगा और आप लोगों को आपकी प्रोफाइल शो करेगा। इट मीन्स पेज का कंटेंट यूजर बाय यूजर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज होता चला जा रहा है। फाइन, सो इट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर B, C और D की, तो भाई B का मतलब है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, जो चेंज होता रहे। डायनेमिक का भी मतलब क्या हुआ, जो क्या है स्टैटिक नहीं है, जो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। एंड देन वी हैव दिस कस्टम, कस्टम का मतलब क्या हुआ, जिसको मॉडिफाई करा जा सकता है। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे B, C और D में तो उन चीजों की बात कर रहे हैं ना जो मॉडिफाई हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, जो फिक्स नहीं है। फाइन, एंड हियर वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर A। और ऑप्शन नंबर A में वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट URL, और एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जो क्या हो, फिक्स हो। फाइन, तो भाई एब्सोल्यूट URLs वो वाली URLs होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, फिक्स बनी रहती हैं। Whereas अगर हम लोग बात करें रिलेटिव URL की, तो रिलेटिव URL क्या होती है भाई, इसका कंटेंट यूजर टू यूजर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी बैंकिंग साइट में लॉगिन करा है तो वो मुझे मेरी यूजर प्रोफाइल दिखाएगा, ना कि तुम्हारी। और अगर तुम किसी बैंकिंग प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे, साइट पे जाके लॉगिन करोगे, तो वो तुमको तुम्हारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। फाइन, बट वो जो वेब पोर्टल है, वो जो वेबसाइट है या वो जो वेब पेज है, वो तो हम दोनों लोगों ने सेम ही एक्सेस करी थी ना, तो फिर वो हम लोगों को अलग अलग डेटा क्यों शो कर रहा है, बिकॉज वो एक टाइप की रिलेटिव URL है। फाइन, now let's move to a question number 6. The question number 6 was a very simple question. अगर पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। It is in the given email address, यहाँ पे जो हम लोगों को नीचे email एड्रेस दिया हुआ इधर साइड में, फाइन, इसमें से भाई डोमेन नेम क्या है। फाइन, what is the domain name in this email address? Well भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए first you have to remember all the parts that we have in this one. तो भाई जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, this first part is termed as our user name, ये यूजर नेम होता है। सेकेंड वाला पार्ट हमारा एक सेपरेटर है। देन वी हैव दिस VSEC n ब्लॉक, तो भाई यही हमारा मेन पार्ट है डोमेन नेम। अब क्वेश्चन आता है अगर ये डोमेन नेम है तो .com क्या है। फाइन, दिस .com इज जनरली टर्म्ड एज डोमेन एक्सटेंशन। फाइन, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा मेरे साथ राइटिंग का इशू है इसमें, बट यू डोंट हैव टू राइट दीज टर्म्स एवर इन द शॉर्ट फॉर्म्स। फाइन, तुम लोग उसको प्रॉपर पूरा ही लिखना जब भी लिखना बेटा। फाइन, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो यूजर नेम है, @ एक सेपरेटर है, VSEC n ब्लॉक हमारा डोमेन नेम है और .com हमारा यहाँ पर क्या है, डोमेन का एक्सटेंशन है। इट मीन्स डोमेन नेम की बात कर रहे हैं, यानी जो VSEC n ब्लॉक है यही करेक्ट आंसर होगा। फाइन, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट, जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खुलता है। वेल जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा उसका फर्स्ट पेज ओपन होता है। फाइन, अभी जो फर्स्ट पेज होता है, दिस फर्स्ट पेज इज जनरली टर्म्ड एज होम पेज। फाइन, तो याद रखना जब भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहां पे फर्स्ट पेज ओपन होता है, और उस फर्स्ट पेज को हम लोग फर्स्ट पेज या फ्रंट पेज नहीं कहते हैं बेटा, दैट फर्स्ट पेज इज टर्म्ड एज होम पेज। ओके, और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे यूजलेस है।
So you can skip all these options. Now let's move to a question number 8. Question number 8 is, which among the following protocol is used mostly to open web pages on the internet? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये बात कर रहा है कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेजेस को ओपन करने में हेल्प करता है इंटरनेट पे. इट मीन्स जब भी नेट यूज करते हैं, हम लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल जनरली वेब पेजेस को यूज करने में हेल्प होता है. तो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल था, तुम लोग उसको चीटिंग कर सकते थे अपने डिस्प्ले से. फाइन, बिकॉज सारी वेबसाइट्स के नाम के स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है भाई, दैट इज HTTP. इट मींस जो HTTP है यही वो इकलौता प्रोटोकॉल है जो हमारी वेब पेजेस को ओपन करने में हेल्प करता है. एक और इसका भाई भी है, दैट इज HTTPS, बट वो थोड़ा सिक्योर्ड है नेचर में, अभी हम लोगों ने इसकी यहाँ पे बात नहीं करी है और ऑप्शन से भी नहीं दिया हुआ है ना. फाइन, सो इट मींस आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, HTTP. अब समझते हैं HTTP होता क्या है. HTTP जनरली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग इसके थ्रू HTML पेजेस को सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर में या फिर क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. Second most important thing, this protocol is generally used with most of the websites which are available on internet. Now let's move to a second option. Second option was FTP. FTP generally stands for File Transfer Protocol and it is only used for sharing or sending files over net. Fine. Then next we have TCP. अब यहाँ पे जो TCP और IP प्रोटोकॉल्स हैं कभी भी अलग अलग वर्क नहीं करते हैं. TCP और IP हमेशा काम एक साथ करते हैं, बट दोनों का काम थोड़ा सा अलग अलग होता है. फाइन, दैट इज व्हेनेवर वी हैव टू सेंड समथिंग. फाइन, वो कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ भी जब सेंड करते हैं, फाइन, वो कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी एनी HTML फाइल, एनी डॉक्यूमेंट, एनी सॉफ्टवेयर, और कुछ भी जब हम लोग नेट पे शेयर करते हैं या सेंड करते हैं. फाइन, तो भाई TCP का काम होता है उस डेटा को ब्रेक करना और IP का काम होता है उस ब्रेक डेटा में, यानी जो छोटे छोटे पैकेट्स बन गए ना, उन पैकेट्स में एड्रेसेस को असाइन कर देना, हेडर्स को लगा देना और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन तक का पहुंचा देना. फाइन, तो यहाँ पर TCP और IP का मेन रोल होता है हमारे डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करके, उनको एड्रेसेस असाइन करके, डेस्टिनेशन तक का पहुंचा करके, वहां पे फिर से असेंबल करके यूजर को करेक्ट डेटा प्रोवाइड कराना. फाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये TCP और IP नहीं होगी ना हमारे पास बेटा, तो कोई भी प्रोटोकॉल वर्ल्ड का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. बिकॉज जनरली ये जो TCP और IP प्रोटोकॉल्स हैं यही डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करेगा एंड हाउ वी कैन यूज सेवरल एप्लीकेशंस ओवर नेट. नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स आर यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल. अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर उनके लिए कम्युनिकेशन वाली जो प्रोसेस है, यानी डेटा शेयरिंग और डेटा ट्रांसफरेंस, ये सब पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो अब एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग कंप्यूटर में बात करते हैं सेट ऑफ रूल्स की या किसी भी टाइप के प्रिंसिपल्स की, तो यहाँ पर दो ही टर्म्स हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज ईदर सिंटेक्स और प्रोटोकॉल. बट अब ये सिंटेक्स कहाँ पर यूज होगा और प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज होगा, इन दोनों चीजों का डिफरेंस हम लोगों को मेनली यहाँ पर समझना है. फाइन, वेल, whenever we are talking about the rules that we can use for writing any programming language, then all those rules, fine, it means all the rules through which we can write any programming language or we can write any program, all such rules are termed as syntax. Fine, मतलब वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम लोग फॉलो करेंगे किसी प्रोग्राम को यूज करते टाइम, प्रोग्राम को लिखते टाइम या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वर्क करते टाइम, all such rules will be termed as syntax. Whereas if we are talking about internet or any kind of networking where we are communicating or our devices are communicating, then for that the rules which are used, these rules are termed as protocol. Fine, it means अगर communication और networking की बात करेंगे तब वहां पर correct answer आएगा protocol. It means our option number B will be correct on this case. अगर कोई भी doubt हो then you can comment down everything in the comment section. Now question number 10, a frequently updated online personal journal or diary where we can write our post and others can comment is called. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी यूटिलिटी अवेलेबल है भैया नेट पे, वेयर वी कैन राइट आवर जर्नल्स और पर्सनल डायरीज. फाइन, यानी जहां पर हम लोग अपने जर्नल्स और डायरी को लिखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे. फाइन, सो दीज आर टर्म्ड एज ब्लॉग्स. All such journals are generally termed as blogs. And blog
इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ वेबलॉग? हो सकता है कभी तुम लोगों को ये सेम क्वेश्चन मिले बट ऑप्शन में ब्लॉग की जगह पे दिया हुआ हो वेबलॉग, तो भाई वेबलॉग इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस. फाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अभी चैट क्या होता है, न्यूज ग्रुप क्या होता है और ईमेल्स क्या होता है, चलो फटाफट से समझते हैं. फाइन, नाउ दिस चैटिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन मैसेजिंग जो कि एक इंस्टेंट प्रोसेस है. फाइन, देन सेकंड इज न्यूज ग्रुप. न्यूज ग्रुप क्या होते हैं भाई? एक तरीके के चैट ग्रुप्स ही होते हैं, चैट रूम्स होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव ईमेल्स. ईमेल एक मैसेजिंग सर्विस है, ये एक ऑनलाइन मेलिंग सर्विस है थ्रू विच वी कैन सेंड लेटर्स एंड सम अदर कंटेंट बाय यूजिंग इंटरनेट. अब एक जनरल क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल. फाइन, कि भाई चैट और ईमेल में क्या डिफरेंस है? तो भाई एक ही कॉमन सा डिफरेंस है, जो चैट है वो इंस्टेंट प्रोसेस है और ईमेल एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज अगेन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. फाइन, पूरे पेपर में सिर्फ 2 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, तो ये हमारा सेकंड है और लास्ट ट्रू फॉल्स है. दैट इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड मशीन एड्रेस. अब यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग. द क्वेश्चन इज किसी भी कंप्यूटर की एड्रेस या लोकेशन वर्ल्ड वाइड वेब में क्या मशीन एड्रेस होती है? तो भाई इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मशीन का जो नेट पे या जो वर्ल्ड वाइड वेब पे एड्रेस होता है दैट इज टर्म्ड एज इट्स आईपी एड्रेस. फाइन, नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 12 अगेन अ यूआरएल बेस्ड क्वेश्चन. अब ये यूआरएल बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है भाई इसमें ये बताओ कि पाथ या फिर फोल्डर. फाइन, ये जो वेब पेज हम लोग ओपन कर रहे हैं इसका पाथ या फोल्डर लोकेशन क्या है? ठीक है, अब पहले पार्ट समझते हैं. फाइन, आर यूआरएल इज https://vaccenblog.com/syllabus/class10.htm. फाइन, जनरली याद रखना द फर्स्ट पार्ट इन एवरी यूआरएल इज द प्रोटोकॉल, यानी जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रोटोकॉल था. सेकंड पार्ट में वी हैव दिस डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन, यानी अब डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई. एंड देन उसके बाद जितना भी पार्ट होता है बेटा ये हमारा होता है फोल्डर या फिर डायरेक्टरी लोकेशन. फाइन, इट मींस व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर द डोमेन नेम एंड डोमेन extension will be your folder location, fine, or directory location. Fine, so here in this case our correct answer will be this is the last option, that is syllabus/class10.htm, because यहाँ पर http प्रोटोकॉल है जो स्टार्टिंग में आएगा, vaccnblog डोमेन नेम है और .com जो है ये हमारा डोमेन का एक्सटेंशन है. Now let's move to a question number 13. Our question number 13 is a dash is a program or a component on the client side that requests and uses services provided by a web server. बड़ा ही अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन था, समझ के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन. ये बोल रहे हैं भैया ऐसा कौन सा प्रोग्राम है क्लाइंट के मशीन में, यानी क्लाइंट कौन होता है पता है तुम लोगों को बेटा? वेल, जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो भाई बीइंग अ यूजर वी आर टर्म्ड एज क्लाइंट्स. फाइन, आवर कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज क्लाइंट्स. इट मींस जिस फोन में अभी तुम ये यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो दैट फोन इज अ क्लाइंट कंप्यूटर और अ क्लाइंट मशीन. वेराज जिस यूट्यूब के सर्वर पे ये वीडियो अपलोडेड है वो सर्वर हो गया हमारा सर्वर कंप्यूटर. फाइन, अब जब भी तुमने ये वीडियो जैसे ही तुमने लिंक पे क्लिक करा तो वो जो लिंक पे क्लिक करके वीडियो को ओपन करने का प्रोसेस था वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर्वर के लिए. फाइन, अब यहां पर हुआ क्या? बहुत छोटा सा काम हुआ भाई, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और बदले में तुमको वीडियो प्रोवाइड कर दी. फाइन, इन द सेम मैनर दिस जनरली दिस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वर्क्स. फाइन, नाउ फॉर वर्किंग विद दिस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वी नीड अ प्रोग्राम इन आवर कंप्यूटर एंड दिस प्रोग्राम इज जनरली टर्म्ड एज वेब क्लाइंट और वेब ब्राउजर. इट मींस यहां पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. अब एक बड़ी गलती अगर तुम लोगों ने कर दी होगी, यानी अगर तुम लोगों में से कुछ ने हो सकता है ए या बी में से कोई एक ही टिक करा होगा तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सेम टर्म्स, तो दोनों ही टिक करना जरूरी है. एंड आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ वेब क्लाइंट एंड वेब ब्राउजर इज करेक्ट. फाइन, नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 14. दिस क्वेश्चन इज विच ईमेल प्रोटोकॉल. अब क्वेश्चन में स्टेट कर दिया है हम लोगों ने कि भैया ईमेलिंग वाले प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, तो एक काम करो फटाफट से इसमें से पहले ये देख लो कि कौन से प्रोटोकॉल ईमेल वाले नहीं हैं. तो मैंने बताया था HTTP और HTTPS का काम होता है वेब पेजेस को शेयर करना. फाइन, HTML पेजेस को जनरली. TCP/IP क्या करता है? डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सेंड करता है, यानी ये दोनों के दोनों मेलिंग का पार्ट तो नहीं है.
तो इनको हटा दो फिलहाल के लिए। अब बच गए दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर, SMTP और IMAP, और हम लोगों को इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कौन सा ऐसा ईमेल प्रोटोकॉल है विच इज यूज्ड व्हेन ईमेल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी जब मेल्स सेंड करते हैं हम लोग या ट्रांसफर करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर के पास, तो उस टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो चलो पहले ऑप्शन नंबर बी को रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज IMAP। IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है भैया IMAP जनरली एक पोस्ट बॉक्स की तरीके वर्क करता है जिसके अंदर सारे मेल्स रिसाइड करते हैं। इट मींस ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, देन वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। अब जरा समझते हैं करेक्ट आंसर क्यों है। दिस ऑप्शन इज SMTP। SMTP जनरली स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है भाई, जनरली मेल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब आई थिंक समझ गए होगे फुल फॉर्म सही। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। आवर लास्ट क्वेश्चन इज Dash is a communication protocol used by the client machines to send the request to the web server for a web page, and at the server end it helps to transfer the requested web page on the client machine by using a secure channel. Well, इस पूरे क्वेश्चन की जो USP थी, जो सबसे मेन पार्ट था, वो लास्ट में दिया हुआ है, दैट इज सिक्योर चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं कोई ऐसा प्रोटोकॉल जो सिक्योर हो। सिक्योर यानी क्या हुआ, जो इंक्रिप्टेड हो, जिसको कोई भी जल्दी हैक ना कर पाए या क्रैक ना कर पाए, कोई ऐसा प्रोटोकॉल। तो जरा ऑप्शंस में देखो पहले कि कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर दिखता है भाई। अब याद रखना, जितने भी प्रोटोकॉल सिक्योर होते हैं उनमें एक एस होता है जरूर। तो भाई HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो सिक्योर नहीं है, इनकरेक्ट हो गया भाई। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी सिक्योर नहीं है। देन नेक्स्ट इज HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी ये सिक्योर है, यानी ये करेक्ट आंसर हो सकता है। एंड देन ऑप्शन नंबर डी इज FTPS, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी सिक्योर है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो C या D में से ही होगा, बट वेट करो। अब इस क्वेश्चन में यहां पर आ जाओ बेटा, थर्ड लाइन में वी आर टॉकिंग अबाउट वेब पेजेस। वेब पेजेस का मतलब हो गया HTML पेजेस, इट मींस दिस ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। फाइन, so this is how you can pick the correct answer by just reading the question properly and analyzing the options. So with this, here we end this class. In our next class, we have to discuss our third chapter, that is cyber ethics. Till then, keep learning, stay safe, keep supporting us, and thank you for watching this video.